Our topic for today is prepositions. First, let us have a look at the meaning of prepositions. The very word preposition is divided into two parts. First is pre. Pre means before, pehle. And the second part is position, which means either a place or a location, matlab jagah. So, what is a preposition? Basically, preposition is a word which is placed before a noun or a pronoun. preposition वो word है जो हमें noun या pronoun के बारे में, वो pronoun या noun कहाँ पे placed है, उसकी position क्या है, हमें वो बताता है. preposition expresses relation express करता है between two things, दो चीज़ों के बीच में, between attributes and actions के बीच में. अब ये attributes और ये actions कौन एक्सप्रेस करता है? which are expressed by adjectives and verbs. The noun or pronoun which is used with a preposition is called its object. Noun या pronoun जो preposition के साथ use होता है उसे हम object कहते हैं. Let us have a look at the example. If you can see this pic, ये pic में क्या दिखा रहा है? एक field दिखा रहा है और cow दिखा रहा है. cow कहाँ पे खड़ी है? field में. There is a cow in the field. Here the relation between two things, cow and field is shown. cow और field के बीच का relation दिखाया जा रहा है. There is a cow in the field. cow कहाँ खड़ी है? field में. So what is the subject? cow is the subject. ये हो गया subject, doer of the action. और ये हो गया object, field. cow कहाँ खड़ी है? field के अंदर. So ये जो in है, this is your preposition, because this word is showing you the relation between the cow and the field. Look at this picture. इसमें एक लड़का बता रहा है जो कप से चाय पी रहा है. Now have a look at the sentence. He is fond of tea. अब यहाँ पे he जो है ये हो गया subject, tea हो गया object. Here the relation between the attribute expressed by the adjective fond and tea is shown. fond का मतलब होता है पसंद आना, बहुत ज़्यादा पसंद आना. So यहाँ पे जो of है, this is the preposition because it is showing you the relation between the attribute fond, which is expressed by the adjective fond, and tea is shown. Look at this picture. यहाँ पे cat दिखा रहे हैं और stool दिखा रहे हैं. The cat stool के ऊपर से नीचे की तरफ कूद रही है. The cat jumped off the chair. Off का मतलब jumped off मतलब नीचे उतरना. Here the word off shows the relation between the action expressed by the verb jumped and the chair. यहाँ क्या दिखा रहा है? off क्या हमें बता रहा है? jumped और चेयर के बीच का रिलेशन बता रहा है जो एक्शन एक्सप्रेस हुआ है. jumped off मतलब नीचे उतरना. तो यहाँ पे जो off है ये हो गया preposition, position या location बता रहा है. Thus the words in, of and off are prepositions. अब देखते हैं preposition actually में क्या है. A preposition may be placed before or after its object. preposition object के पहले भी हम place कर सकते हैं, object के बाद भी place कर सकते हैं.
अ preposition may have two or more objects. एक preposition का एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है. चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं. Have a look at this picture. The plane flies over the mountains. अब यहाँ पे प्लेन दिखाया गया है जो हवा में उड़ रहा है और ये माउंटेन्स के ऊपर से जा रहा है. The plane flies over the mountains. So यहाँ पे over is the preposition. ऊपर, mountains के ऊपर, over the mountains, ऊपर का position दिखा रहा है. So over is the preposition. Here is the watch that you asked for. यहाँ ये घड़ी है जो तुमने मांगी थी. That you asked for. अब यहाँ पे preposition हमारा क्या है? Preposition है for. Here is the watch that you asked for. What are you looking at? तुम किस चीज़ की तरफ देख रहे हो? किस तरफ देख रहे हो? So at. At is the preposition. यहाँ पे for preposition है, यहाँ पे at preposition है. Which of these chairs did you sit on? इन chairs में से आप कौन सी चेयर पे बैठे? Sit on, on, ऊपर. यहाँ पे position दिखा रहा है on. So on is the preposition. When the object is a relative pronoun, that the preposition is always placed at the end of the sentence. मतलब जब भी कोई सेंटेंस में that जो relative pronoun है वो यूज़ होता है शुरुआत में, तो हमेशा preposition वो सेंटेंस के आखिर में आता है. एक एग्जाम्पल देखते हैं. That is the boy whom I was speaking of. अब यहाँ पे देखिए relative pronoun that जो है सेंटेंस के स्टार्टिंग में है. This is a relative pronoun. तो यहाँ पे of जो है preposition ये सेंटेंस के आखिर में लिया गया है. This is the preposition of, which is at the end of the sentence, and that is the relative pronoun which is placed at the beginning of the sentence. ये रूल है, ग्रामर का रूल है कि जब भी relative pronoun that sentence में आता है तब preposition जो है वो sentence के आखिर में ही आएगा. This is a grammatical rule which we have to follow. When the object is an interrogative pronoun, the preposition is mostly placed at the end of the sentence. अब जो sentence में object interrogative pronoun हो जाता है, अब यहाँ पे जो है what, ये what interrogative pronoun है. It's an interrogative pronoun because it's asking a question, correct? So again here the preposition of is placed at the end of the sentence. तो अब तक हमने दो रूल्स किए हैं कि जो सेंटेंस में दैट आता है, रिलेटिव प्रोनाउन आता है, तो उस सेंटेंस में हमेशा प्रेपोजिशन सेंटेंस के एंडिंग में प्लेस होगा, और जो सेंटेंस में इंटरोगेटिव प्रोनाउन व्हाट आता है उसमें भी प्रेपोजिशन सेंटेंस के एंडिंग में प्लेस होगा. ओके, लेट्स गो फर्दर. प्रेपोजिशंस आर ओमिटेड बिफोर नाउन्स ऑफ प्लेस और टाइम. प्रेपोजिशंस हम कहाँ नहीं लगाते, ओमिटेड का मतलब कहाँ नहीं लगाते. जब भी नाउन में, नाउन अगर हमें प्लेस दिखा रहा है या टाइम दिखा रहा है तब हम प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं. वी लेट अस सी द एग्जांपल. वी डिड इट लास्ट वीक. हमने ये पिछले हफ्ते किया था, लास्ट वीक. तो यहाँ पे लास्ट वीक जो है ये हमें टाइम दिखा रहा है ना, करेक्ट. सो यहाँ पे ये सेंटेंस में कोई भी प्रेपोजिशन नहीं है. सिमिलरली वेट अ मिनट, अ मिनट ये टाइम बता रहा है, एक मिनट के लिए रुको, वेट अ मिनट तो टाइम बता रहा है, तो यहाँ भी कोई प्रेपोजिशन यूज़ नहीं हुआ है. ऑलराइट, look at this picture.
आई कांट वॉक अ यार्ड। अब यार्ड किसे कहते हैं? घर के बाहर जो ग्रीन एरिया होता है जिस पे घास उगती है, उस एरिया को हम यार्ड बोलते हैं। ओके, आई कांट वॉक अ यार्ड, मैं एक यार्ड भर के नहीं चल सकता या चल सकती। अब यहाँ पे फिर से अ यार्ड, यार्ड जो है डिस्टेंस हमें बता रहा है। ऑलराइट, सो फिर से यहाँ पे प्रेपोजिशन नहीं लगा है। नाउ दिस इज अ लिस्ट ऑफ प्रेपोजिशंस। ये एक लिस्ट है पूरे प्रेपोजिशंस की। एट, बाय, फॉर, फ्रॉम, इन, ऑफ, ऑफ, ऑन, आउट, थ्रू, till, to, up, with, about, above, across, along, amidst। amidst मतलब बीचों बीच, सबके बीचों बीच। among मतलब भी सबके बीच में। amongst, amongst मतलब इतने लोगों के बीच में। around, before, behind, below, beneath। behind मतलब पीछे, below मतलब नीचे, beneath मतलब कोई चीज़ के नीचे, beside मतलब बाजू में, between मतलब बीच में, beyond, inside, outside, underneath। underneath भी is the same as beneath। underneath मतलब भी कोई चीज़ के नीचे। within, without, before, after, down, since। since मतलब तब से। now let us do this exercise। थोड़े sentences है in which we will fill with appropriate prepositions। first one, silkworms feed dash mulberry trees। मतलब सिल्कवर्म्स जो सिल्क के कीड़े होते हैं वो हमेशा मलबरी ट्रीज पे ही मिलते हैं हमें। फीड मतलब वही रहते हैं, वही खाते हैं, उसी में रहते हैं। सिल्कवर्म्स फीड डैश मलबरी ट्रीज, मलबरी ट्रीज पे, तो क्या आएगा प्रेपोजिशन? ऑन। सिल्कवर्म्स फीड ऑन मलबरी ट्रीज। सेकेंड, अल्कोहल इज इंजूरियस डैश हेल्थ। शराब हेल्थ के लिए इंजूरियस है, खराब है। सो यहाँ क्या प्रपोजिशन आएगा? अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ। टू। ऑयल इज गुड डैश बर्न्स। बर्न्स के लिए मतलब जब हम जल जाते हैं, स्किन हमारी जल जाती है तो उस पर हम ऑयल लगाते हैं क्योंकि ऑयल जली हुई स्किन को जल्दी हील करता है, इसीलिए बोलते हैं ऑयल इज़ गुड डैश बर्न्स। तो यहाँ प्रेपोजिशन आएगा फॉर बर्न्स, मतलब बर्न्स के लिए ऑयल अच्छा है। अशोका इज़ वर्दी डैश रिमेम्बरेंस। अशोका राजा का नाम था, ही वॉज अ किंग। वर्दी डैश रिमेम्बरेंस, वर्दी मतलब लायक, रिमेम्बरेंस मतलब याद रखने लायक। तो अशोका वो राजा था जो याद रखने लायक था। सो वर्दी ऑफ रिमेम्बरेंस, ये एक फ्रेज है। वर्दी ऑफ रिमेम्बरेंस ये पूरा फ्रेज है। द गोडाउन इज इन्फेस्टेड डैश रैट्स। गोडाउन जो है रैट्स से पूरा भरा हुआ है। इन्फेस्टेड मतलब पूरा भरा हुआ। सो द गोडाउन इज इन्फेस्टेड विथ रैट्स, रैट्स से भरा हुआ, विथ रैट्स। माई ब्रदर इज वीक डैश मैथमेटिक्स। माई ब्रदर इज वीक डैश मैथमेटिक्स, मेरा भाई मैथमेटिक्स की सब्जेक्ट में वीक है, कमज़ोर है। सो यहाँ पे आएगा इन। एट भी लगा सकते हैं।
दो ऑप्शन है, माई ब्रदर इज़ वीक एट मैथमेटिक्स, माई ब्रदर इज़ वीक इन मैथमेटिक्स, बट ज़्यादा बेटर ऑप्शन है एट. एट इज़ अ मच बेटर ऑप्शन, बिकॉज जब हम इन बोलते हैं इन मैथमेटिक्स, तब ऐसा हो जाता है कि मैथमेटिक्स के अंदर, अब वो तो नहीं हो सकता. सो बेटर ऑप्शन इज एट मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में. ही इज टू माइजरली टू पार्ट डैश हिज मनी. माइजरली का मतलब है कंजूस, पार्ट मतलब देना. वो इतना कंजूस है कि वो अपना पैसा किसी को देता नहीं, किसी के साथ शेयर नहीं करता. पार्ट मतलब शेयर करना. ही इज़ टू माइजरली टू पार्ट विथ हिज मनी, उसके पैसे के साथ पार्ट नहीं करता, विथ हिज मनी. दे कुड नॉट अग्री डैश देम सेल्व्स. वो अपने बीच में अग्री नहीं कर सकते थे. देम सेल्व्स मतलब अपने आप में. दे कुड नॉट अग्री, तो बहुत सारे लोग होते हैं एक दूसरे के साथ एग्री नहीं करते, तो बहुत सारे लोगों को एक दूसरे के साथ बोलते हैं अमंगस्ट. एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के बीच में. दे कुड नॉट अग्री अमंगस्ट देमसेल्व्स. द कैट हिड डैश द टेबल. हिड मतलब छिप जाना. कैट कहाँ छुपी थी? डैश द टेबल. अब छुपना मतलब नहीं दिखना. अब टेबल के ऊपर अगर बैठेगी तो दिखेगी, तब ये छुपना नहीं होगा. जब टेबल के नीचे बैठेगी तब छुप पाएगी, करेक्ट, क्योंकि उसके ऊपर टेबल होगी तो कैट नहीं दिखेगी. सो द कैट हिड टेबल के नीचे, तो क्या आएगा? अंडर, अंडर द टेबल. द कैट हिड अंडर द टेबल. वंस डैश अ टाइम, ये एक फ्रेज है. वंस डैश अ टाइम, तो ये कहावत है, तो यहाँ पे अपॉन ही आएगा. वंस अपॉन अ टाइम. जब हम स्टोरी शुरू करते हैं तो दूर का टाइम दिखाने के लिए, बहुत पहले का टाइम दिखाने के लिए वी यूज़ दिस फ्रेज वंस अपॉन अ टाइम. वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ मैन, देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन. ओके, ऐसे स्टार्ट होता है नॉर्मली. So with this we come to the end of the chapter, prepositions.